Yes. So in our today's social science class, we will continue the same topic, that is diversity. This is from your civics, chapter 1, diversity. And in our previous class, we have studied about the diversity in different various or different fields, like diversity in religion, diversity in festival, diversity in languages. And I had asked from you that how many languages, or the 22 languages which are mentioned in our constitution. Just give me some seconds. Just hold on, please. Yes. So I have asked from you regarding the languages, 22 languages which are mentioned in our constitution. So I'll unmute one by one. I'll unmute one by one. If you have written and you start scribbling, just give me 1 second to put a privacy so that nobody update or people see. Yes. Now I'm going to unmute for my answer, that at least if you have written. And okay, you just raise your hand. I'll see in the participants, I'll see in the chat. You just raise your hand, those who have written, because I'll not waste my time. Raise your hand, those who has written the 22 languages. Okay, very nice. You are raising the hand. So I'll ask from Bhagyavi Arora. So Bhagyavi, you are unmuted now. Are you able to listen, Bhagyavi? Bhagyavi, are you able to listen? I have unmuted. You can unmute by yourself from your side. अगर अपनी साइड से आपने अपने आप को म्यूट किया है तो जस्ट म्यूट अनम्यूट यू. आपके अपने फोन में, अपने पीसी पे, कहीं पे भी आपने अपने आप को अनम्यूट किया है, उसको म्यूट किया है, प्लीज अनम्यूट करो. Okay, Bhargavi is not able to bring the answer, and I'll ask from Saloni. Saloni, are you able to listen? Saloni, are you able to listen? Saloni, are you able to listen? Okay. Then Ruhani Verma. Some are saying, some are speaking. Ruhani Verma. Who is speaking? Saloni, Himani, Hina. Not able to listen. Okay, I'll give you a chance at the end of our meeting. So I'm going to share a screen of these 22 languages. You just see which languages, 22 languages in our constitution. मैडम कौन सा चैप्टर? So those who has not written, you can take a screenshot of it. Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Uriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil. And I hope you have taken the screenshot. So next, the rest, uh, see, next one, Telugu, Urdu, Bodu, Santhali, Maithili, and last one, Dogri. So this is a very proud thing for our Jammutis. हमारे जम्मू के लोगों के लिए काफी प्राउड की बात है कि हमारी डोगरी लैंग्वेज जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई है. ओके, सो इट्स अ वेरी प्राउड थिंग फॉर अस.
So just give me 1 second. Yes. So I have explained about the diversity in religion. Like we have Hinduism, we have Christianity, Sikhism. So those who are saying in the chat, ma'am, can I say Ruhani Verma? She's saying that I know the answer. Hina, can I say? So some are saying, and I know that because of network problem, you were not able to listen me, or you were not able to speak. So you will get chance at the last. Okay. So I'm going to proceed my next subtopic, that is diversity in geography and culture. Because food और festival के बारे में हमने already discuss किया था, that diversity in festival हमारे इंडिया में रक्षाबंधन है, then रामनवमी है, दशहरा है, ईद है, then गुरपुरब है. Okay, so different type of festival we celebrate. But in foreign countries, only 2 3 like Christmas, New Year's they celebrate. So we have diversity in festival, we have diversity in food also, because different festival होंगे तो different food भी हमारे घर पे बनते हैं. Okay, so I had given the example of a region Kerala. मैंने आपको केरला का एग्जाम्पल दिया था कि वहाँ पे कोई भी फेस्टिवल हो तो फूड जो है वो मोस्टली कोकोनट की कोकोनट इंग्रेडिएंट से बनता है. उनके हर एक फूड में कोकोनट ही ज्यादा डाला जाता है, बिकॉज ऑफ देयर because the coconut grown in that particular region easily, or available in that particular region easily. So I think you understood about the diversity in religion, diversity in festivals, diversity in food also. So here I'm going to share a screen of different type of food, that is diversity in food. So see on the share screen different type of. So some are saying, ma'am, please speak loudly, because I am already very loud. Because so this is a diversity in food, like South, North Indian food, South Indian food, East Indian, Western food. ओके, तो नॉर्थ इंडियन में आपको पता ही है हमारा पंजाबी या जम्मू का फूड जो है वो इंक्लूड है. साउथ इंडिया में हमारा केरला, तमिलनाडु का जो भी हमारी कोकोनट डिशेज होती हैं वो इंक्लूड है. देन हमारा गुजराती फूड है. ओके, गुजराती, राजस्थानी. तो ये जो फूड, ईस्टर्न फूड, देन वेस्टर्न फूड. ओके, so this is the diversity in food also. And so next one, listen, just give me some second to share a screen of the next topic. Yes, so this is very important, geography in diversity in geography, or geographical diversity you can say, because India is a diverse country in terms of geography. And I think you had studied in your 5th standard about the different landforms. Different landforms के बारे में आपने already पढ़ा है. Plain area, river area, plateau area, desert area. Okay, so mountain, hilly area, mountainous area. So this type of diversity is in India only. Okay, because India में सिर्फ hilly area ही नहीं है, India में सिर्फ ocean area ही नहीं है. India is diverse in its geographical terms also. So India has a great diversity in landforms, and like you can say, in the north and east we find the Himalayas. अगर आप northern states की बात करो, जम्मू, हिमाचल, देन नॉर्दर्न स्टेट्स में और कौन सी आती हैं, जम्मू, हिमाचल, देन उत्तराखंड. तो नॉर्दर्न स्टेट्स में क्या है, हिमालयाज. आपने देखा होगा हिमालयाज आर ओनली इन नॉर्दर्न स्टेट्स. एंड इन दीज नॉर्दर्न स्टेट्स द रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस ओरिजिनेटेड. तो द वेस्ट, नॉर्दर्न में तो हमारे हिमालयाज हैं, बट जो इंडिया की वेस्ट डायरेक्शन है, दैट इज मार्क्ड बाय अ रफ टेरेन एंड अ डेजर्ट. तो वेस्ट में आपको पता है वेस्टर्न स्टेट्स कौन सी है इंडिया की, राजस्थान. इंडिया की वेस्टर्न स्टेट्स कौन सी है, राजस्थान है. तो राजस्थान में क्या है, डेजर्ट. So you can say the western side of India is covered by desert, and the northern side of India is covered by Himalayas. Okay, so these geography division, and very important, the south.
जो ओशियंस हैं, ओशियंस तो हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं है ना, ओशियन हमारे नॉर्थ में भी नहीं है, ओशियन हमारे कहाँ पे हैं, दैट इज इन साउथ, तमिलनाडु, चेन्नई, कलकत्ता, केरला। तो ओशियन जो हमारा एक लैंड फॉर्म है दैट इज इन साउथ, like you can say coastal regions, and these geography divisions had a lasting influence on the eating habit. तो ये जो ज्योग्राफी होती है ये हमारे कल्चर को भी रिफ्लेक्ट करती है. Geography and culture are interrelated, you can say like this. Geography and culture are interrelated because ज्योग्राफी डिफरेंट होगी, रीजन डिफरेंट होगा, लैंड फॉर्म्स डिफरेंट होंगी, तो हमारा कल्चर भी डिफरेंट होगा. बिकॉज इन नॉर्दर्न स्टेट्स में, नॉर्दर्न जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, यहाँ पे हिमालयाज हैं. तो हिमालयाज होने के कारण यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा ड्राई एंड कोल्ड वेदर रहता है. ओके, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर में आपने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम स्नोफॉल होता है इन विंटर सीजन. तो साउथ में तो नहीं होता है, जहाँ पे ओशियंस है वहां पे तो स्नोफॉल नहीं होता है. तो जहाँ स्नोफॉल होता है वहाँ के लोगों की ईटिंग हैबिट, वो गर्म चीजें खाते हैं, वो हॉट ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं. ओके, तो वो ज्यादा वुलन के कपड़े पहनते हैं बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर. तो जैसे कपड़े पहनेंगे, जैसा खाना खाएंगे, जैसे घर में रहेंगे, दैट इज कल्चर. ओके, तो हमारे क्लोथ, हमारा जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारे हाउसेस हैं, हमारा नेबरहुड है, या हमारा लिविंग कंडीशंस जो होती हैं वो हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं. तो ज्योग्राफी एंड कल्चर इज ऑलवेज इंटररिलेटेड. सो नाउ आई एम गोइंग टू who is saying, Saloni Sharma is saying we have to learn this diagram which you are sending. No need to learn this. So you just listen, concentrate on the listening. Okay, बिकॉज ये जो मैं बता रही हूँ ये बाद में आपको पढ़ने पे समझ नहीं आएगा जब आप खुद रीड करोगे. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू अबाउट द एरिया ऑफ लद्दाख. Okay, so people living in the mountainous area of Ladakh depend on sheep, goats and cows for their food requirement because camels जो हैं वो desert area में होते हैं. एंड एनिमल्स की डाइवर्सिटी भी आपको पता है, फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो भी इंडिया में डिफरेंट टाइप के होते हैं बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी. बिकॉज कैमल जो है वो हमारे इसमें हिमालयास में तो जाएगा नहीं ना, कैमल जो है वो जम्मू में तो आएगा नहीं. कैमल जो है उसको हॉट वेदर ही पसंद है और हॉट वेदर में ही वो रह सकता है. तो इन लद्दाख एरिया इज वेरी ड्राई एंड कोल्ड. So which type of animals live here? That these are sheep, goats, and cows for their food requirement. And they also do agriculture. And the Ladakhi people wear warm clothes throughout the year. And the main source of अर्निंग, जो उनका जो कमाने का या जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं, वो उनका मेन सोर्स है वूल. शीप से क्या मिलता है, वूल ही मिलता है. एंड इन कंट्रास्ट पीपल इन तमिलनाडु, लाइक अगर हम लद्दाख की बात करें, डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट हैबिट्स हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशन हैं, डिफरेंट अर्निंग सोर्सेज हैं. अर्निंग सोर्सेज होती हैं जिससे हम कमा सकते हैं, जिससे हम कुछ काम कर सकते हैं. तो अगर लद्दाख के पीपल का डिफरेंट लिविंग कंडीशंस हैं, देन साउथ में केरला के भी डिफरेंट, तमिलनाडु के भी डिफरेंट ही होंगे. बिकॉज तमिलनाडु में ओशियन एरिया है, तो तमिलनाडु, द तमिल पीपल डिपेंड्स ऑन द फिश ऑक्यूपेशन. कोस्टल रीजन में समुद्र में क्या मिलेगा, फिशेज ही मिलेंगी ना, वहां पे शिप तो आएगी नहीं. लद्दाख में तो फिशेज आती ही नहीं है, लद्दाख में फिशेज मिलना बहुत डिफिकल्ट है. तो ओशियन एरिया जहाँ होंगे वहां के लोगों का ऑक्यूपेशन डिफरेंट हो जाएगा, दैट इज कल्चर. ओके, तो ज्योग्राफी डिफरेंट है, उनके पास ओशियन है तो उनके पास फिशेज हैं, उनके पास उनकी जो डिश बनती है वो फिशेज से ही बनती है. तो हम बोलते हैं ना, हम मोस्टली हम यही बोलते हैं कि कैसा कल्चर है इनका, ये लोग तो फिश ही खाते रहते हैं. तो दैट मीन कि उनका कल्चर ही ऐसा है. तो उनका कल्चर क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी. So I think and I hope you are well understood about this topic. So the temperature is also different, weather is also different because जो साउथ का तमिलनाडु का वेदर है वो मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा कोल्ड होता है ना ज्यादा हॉट होता है. तो वहाँ के लोग जो हैं वो मॉडरेट जो क्लोथ हैं वही वेयर करते हैं. एंड so regional and cultural diversity in India is the result of not only its geography but its history also. Okay, so that means हमारी जो geography है वो हमारे culture को reflect करती है,
एज वेल एज हमारा जो कल्चर है वो हमारी हिस्ट्री की वजह से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारा कल्चर हमारी ज्योग्राफी की वजह से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, और लाइक यू कैन से कि इन्फ्लुएंस पड़ रहा है उसका। एंड हमारा कल्चर, हमारा जो लिविंग कंडीशंस हैं, हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, वो हिस्ट्री की वजह से भी डिफरेंट है। बाय हिस्ट्री बिकॉज you already read in the history chapter that many foreigners from various parts of the world came and settled down in India. तो आपने हिस्ट्री में यही पढ़ते हो ना कि अल बिरूनी था, या वो मुगल्स थे, तो शाहजहां था। तो जितने भी मुगल्स थे या कोई भी फॉरेनर्स थे, वो इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया पे अटैक किया, इंडिया को अपने कंट्रोल में किया। तो जब वो बाहर से किसी और कंट्री से इंडिया में आए, तो वो वहाँ का कल्चर भी इंडिया में लेके आए। ओके, बिकॉज आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर से इंडिया में आए थे, उन्होंने अटैक किया और इंडिया की मोस्ट ऑफ द रीजन उन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया। और जब उन्होंने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया, तो उन्होंने क्या किया, जो अपनी लैंग्वेज उनको पहले से आती थी, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई, वही इंडिया में बोलनी स्टार्ट की। तो यू कैन से मुगल्स ब्रॉट द पर्शियन लैंग्वेज विच मर्ज्ड विद हिंदी टू गिव राइज टू अ न्यू लैंग्वेज, उर्दू। तो पर्शियन लैंग्वेज कौन लेके आया था, मुगल्स लेके आए थे। दैट इज द एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ द पर्शियन लैंग्वेज विच वॉज ब्रॉट बाय मुगल्स। पर्शियन लैंग्वेज मुगल लोग जो थे वो लेके आए थे, एंड उस पर्शियन लैंग्वेज को हिंदी में मर्ज करके, हिंदी में इंक्लूड करके उर्दू बनाई गई। तो हमारा उर्दू जो है वो हमारी लैंग्वेज बन गई, तो ये भी हमारा कल्चर बन गया। तो हमारी हिस्ट्री जो है वो भी हमारे कल्चर पे इन्फ्लुएंस करती है, हमारी ज्योग्राफी भी हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है। ओके, so I think you understood this. So next and the last most topic is unity in diversity. So for this I'm going to share a screen. Just give me some seconds. Yes. So just give me some seconds. Anisvi KD is saying, ma'am, what is lingua franca? So what is lingua franca? It is given in your book, and it is the meaning of this particular term is given in your book. की टर्म्स में ये आपका मीनिंग दिया हुआ है, पेज नंबर 196 पे है, लिंगुआ फ्रेंसा। तो की टर्म्स में लिंगुआ फ्रेंसा का मीनिंग दिया है, दैट इज लिंगुआ फ्रेंसा इज अ लैंग्वेज used as a common language between the people who do not have same native language. Lingua franca means वो लैंग्वेज जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। कॉमन लैंग्वेज को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन द पीपल हु डू नॉट हैव सेम नेटिव लैंग्वेज, उन लोगों के साथ जिनको ये लैंग्वेज नहीं आती। लाइक यू कैन से कि अब उर्दू हमें उर्दू सिर्फ जम्मू कश्मीर में लोगों को आती है, या साउथ वाली साइड किसी को नहीं आती है। जब हम उनके साथ उर्दू में बात करेंगे तो वो एक कॉमन, वो भी सीख जाएंगे और वो कॉमन लैंग्वेज बन जाएगी, दैट इज लिंगुआ फ्रेंका। ओके, so it is given here, it became the lingua franca of India under the Mughal. Lingua franca means सबको अंडर मुगल्स, मुगल्स ने इसको हमारे इंडिया में लाया और ये लोगों की कॉमन लैंग्वेज बन गई, लिंगुआ फ्रेंका बन गई। ओके, सो दिस इज इवन टुडे इट इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है ये। So the last most topic which I have shared in your share screen, India is about unity in diversity, and that topic is given in your page number 198, and the case study जो आपकी बुक में case study दी हुई है, this you can read by yourself. Case study जो है ये different states की है, या आप घर पे उसको पढ़ सकते हो। लद्दाख की स्टडी है, केरला। तो और एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, आपको लद्दाख के बारे में भी एक्सप्लेन किया है, केरला के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। बट ये जो है केस स्टडी, ये एक वास्ट टॉपिक होता है जिसको आपको खुद रीड करना पड़ता है। ओके, तो कि लद्दाख में लद्दाख कैसे हुआ, लद्दाख किस तरह की डिशेस बनती हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। so this case study you can read by yourself. So the last most topic is India is about unity in diversity. So this
फ्रेज, ये जो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो एक सेंटेंस है, यू कैन से फ्रेज है, ये किसने दिया हुआ है? आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू said that unity in diversity and India is about unity in diversity, और unity in diversity कहाँ पे है? इंडिया में। And Pandit Jawaharlal Nehru described India as a geographical and economic entity, a culture unity amidst diversity, a bundle of contradiction. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि इंडिया में क्या है? यूनिटी। यूनिटी होती है टुगेदरनेस, डाइवर्सिटी होती है डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट पीपल। तो यहाँ पे डिफरेंट लोग रहते हैं, यहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी है, डिफरेंट फूड है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट क्लोथ्स हैं, डिफरेंट कस्टम है, बट फिर भी इंडिया के लोग क्या हैं? यूनाइटेड। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया के लोग यूनाइटेड हैं। एंड हाउ, ये तो आपको पता होगा, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस all religious people took part in our freedom struggle. तो जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस चाहिए थी, सिर्फ सिख्स ने ही या सिर्फ हिंदू लोगों ने ही उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ऑल वांटेड दैट वी वांट फ्रीडम, बिकॉज इंडिया के सभी लोगों ने ब्रिटिशर से फाइट की। हिंदूज न हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, जैनिज्म भी थे, तो ऑल, तो सबने फाइट किया, एक साथ किया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स चले गए। दैट मीन्स हमें उस मोमेंट पे क्या था? प्राउड था दैट ऑल आर यूनाइटेड इन इंडिया। एंड एज हैज बीन सीन इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ, तो आपने ऑलरेडी देखा है, जो ऑलरेडी पैराग्राफ आपने पढ़े हैं, प्रीवियस पैराग्राफ कौन से हैं? डाइवर्सिटी इन ज्योग्राफी, डाइवर्सिटी इन रिलीजन, डाइवर्सिटी इन क्लोथ, डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल। तो there has always been an underlying unity in India because of its immense capacity to absorb and assimilate different culture of the world. तो हमारे इंडिया में ही ये कैपेसिटी है कि यहाँ पे हर तरह के लोग रह सकते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे इतने सारे लोगों का इकट्ठे रहना, ऑल टाइप ऑफ रिलीजियस पीपल, वेरी डिफिकल्ट टू लिव हियर। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है वहाँ पे रहना, बिकॉज ये इंडिया में ही है ज्यादा। एंड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन हैव मेड वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो हमारी कंट्री में सिर्फ ये नहीं कि हिंदू लोग ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अभी जैसे कोविड-19 का पेंडेमिक है, आपको पता है कितनी ज्यादा डिफिकल्टी है इंडिया के लिए। तो सिर्फ हिंदू लोग ही सबको वो दान नहीं कर रहे हैं, हिंदू लोग ही सबकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ऑल रिलीजियस पीपल, सारे लोग इकट्ठे मिलके एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एंड इन स्पाइट ऑफ द रिलीजियस, लैंग्वेज एंड रीजनल डाइवर्सिटी, we came together as a nation to fight the British and became an independent nation. And national integrity lies in unity, and the whole country is bound as a civilization due to its common history, thereby preserving the national identity. तो अगर हमें national integrity चाहिए, दैट मीन्स कि हमें यूनाइट होके रहना पड़ेगा। अगर हम यूनाइट होके नहीं रहेंगे तो हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी, इक्वालिटी ही नहीं रहेगी। इक्वालिटी तब होगी जब सबको एक जैसे राइट्स मिलेंगे। ओके, so here my topic is already finished, so I'm going to unmute you for your questions. And listen one thing, you have a PTM on 6th of June. I'll send a schedule today. आज मैं आपको सेंड कर दूंगी। You just tell your parents that be on time on 6th of June. आज आपको टाइम मैं स्नैप होमवर्क पे सेंड कर दूंगी मैसेज। and those who have technical problem, I'll send in your WhatsApp group also. Zoom link जो है मैं WhatsApp group पे भी सेंड कर दूंगी। डोंट वरी कि हमारा स्नैप नहीं चल रहा है तो मैम हम कैसे ज्वाइन करेंगे, वी फाइंड डिफिकल्टी। WhatsApp ग्रुप, स्नैप होमवर्क, दोनों साइड मैं आपको जूम लिंक सेंड कर दूंगी। तो ऑन 6 जून टेल टू योर पेरेंट्स दैट एट 4 PM, शाम को 4 बजे आपकी पीटीएम है, तो वो इट्स कंपल्सरी टू अटेंड, ऑल ऑफ यू, 6A and 6B. So still the participants in today's class are 70, not more than that, because 63 या 64 बच्चों की स्ट्रेंथ है पर क्लास में। तो ये तो 100 के भी ऊपर जाने चाहिए, मीन्स 120 से भी ऊपर जाने चाहिए, बट 70 participants are there. I don't know what is the matter, because स्नैप होमवर्क पे ही आपका लिंक जाता है, स्नैप होमवर्क से आपको ज्वाइन करना होता है।
So it's very important to attend the PTM. I'll send today, and your marks are already uploaded in that campus here. So now I'm going to unmute you if you have any doubt. And listen, question answers, don't ask from me about the question answer. Question answers I'll send today or maybe tomorrow of this chapter diversity, and the जो English का हमने Macbeth पढ़ा था, that we will discuss in our next class. Okay, next English class. Again, I'll explain the same topic in our next class. So yes. Ma'am, excuse me, ma'am. आपने जो कॉन्स्टिट्यूशंस की 20 लैंग्वेजेस लिखवाई थी मैम, प्लीज एक बार रिपीट कर दो. बच्चे I'll send in snap homework. Okay, ma'am. And ma'am, marks which you have uploaded, ma'am, please send it on Snap homework. बच्चे no. PTM कब है? Please upload marks on Snap homework. Excuse me, ma'am. मैम PTM कितने बजे थी? मैम PTM कहाँ पे होगी? लिंक में और स्नैप होमवर्क कितने बजे थी? On phone. PTM कितने बजे Excuse me, ma'am. बच्चे शाम को 4 बजे 4 PM. मैम 4 PM to Yes. मैम 4 PM to Ma'am, can I say that 4 languages? PM to 5 PM. 1 okay hour. मैम थैंक यू मैम कौन सी डेट होगी? कौन सी होगी? आपने languages ये Zoom में और स्नैप होमवर्क. Ma'am, can I say languages? एक और बार रिपीट कर दो. मैम Zoom पे होगी या Zoom पे होगी या Yes, स्नैप Tina होमवर्क पे? is saying, ma'am, can I say languages? So I'll give you Ma'am, chance. I want to ask you something. जो आपने languages बोली थी वो एक और बार रिपीट कर दो. बच्चे I'll send in snap homework and WhatsApp. Okay, ma'am. I speak the languages. Ma'am, can I say that languages? किस में होगी? Zoom में और स्नैप होमवर्क? बच्चे जैसे आप अपनी क्लास अटेंड करते हो सेम वैसे ही आपको जूम मीटिंग आपके पेरेंट्स को जूम मीटिंग अटेंड करनी है. ओके मैम. Okay, bye. Can I say that languages? Ma'am. Ma'am, Zoom is not opening. Bच्चे I am going to send all the languages in Snap and WhatsApp. You can copy and note down in your notebook. Okay. Ma'am, only teacher. Ma'am, only